आज 50 लोग ऐसे नहीं हैं। आज मैं खड़ी हो जाऊँ यहाँ पे पूरे हैदराबाद में तो 50 लोग नहीं मिलेंगे मुझे जो कि आके बोले कि नहीं मधुलिका हम साथ में खड़े हैं और जो है ना हम क्लीनिंग ड्राइव करें। लेकिन जब आप चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, जो सालों से कोई एक चीज को बदलने की कोशिश कर रहे हो, शायद आपको अकेले ही चलना है। हजारों लेके आप किसी भी लेक पे काम कर लो, काम शुरू तो करो, इनिशिएटिव लो तो प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आते हैं लेकिन सॉल्यूशन मिलेगा। और वो जब तक लव वापस नहीं आएगा ना, हम सिर्फ सुपरफिशियली protecting the environment, protecting the lakes, protecting the world, protecting the earth, ये सब बोलते हैं। Hello everybody, today we are here at the Neknampur Lake. In the backdrop as you can see this beautiful lake which was once a dump yard for human waste, animal waste, construction waste. We also found dead bodies here. But thanks to Madhulika ma'am, she completely restored this with the help of other volunteers. So let us find out how she did all this. Before we get to the lake subject, tell us a little bit about yourself and your background. Thank you, Ram. Thank you, all the viewers. uh, my background is actually I'm MTech in computer engineering. The good thing about it, I just finished MTech in environmental management. So way back, I was working continuously as a software engineer and worked at many places. And I realized that I'm not doing anything for my country. So my husband gave me 1 year of time to, okay, you decide what you want to do for your country. And it was very difficult again for me to do. So I was a good student. I always been a good student during the school also. Science used to be a very good subject for me. So I decided that I'll teach global warming in the schools. And with these teachings, I'll try to bring people or the students especially closer to the environment. That was the first event I've started. Then I created PowerPoint presentations and I'm going school to school, conducting programs and awareness programs to do the global warming and to understand climate change or what we should do it. Things were going very good. The same year, I mean 2015, this is I'm telling you, 2016, there was a 25 lakhs target by the Telangana government for the plantation. So somehow I was active in this Manikonda area and I was contacted by the officers to do some plantation. So this lake was very near to my home, just a half kilometer. But the lake was in pathetic condition. But my issue is that, or challenges with that, okay, fine, the lake is in pathetic condition, but at least I have a water. Because if I do the plantation nearby the lake, obviously who will water them? So the lake has sewage water, okay, I understand, but at least there will be water so that the plants can sustain. So that was how in 2016 we did a 2000 plantation. I mean, first we did the cleaning and I called a lot of schools and colleges whom I was associated for the global warming sessions. And I requested them, they come up, we did a good amount of big cleaning drive over here. Then there was a society, Green Grace community, they also come and helped. And we did 2000 plantation at the lake. So with the buckets, right, with the buckets we used to fill the water of the lake. Again, the garbage dump pad was there. Till then we have not started any kind of treatment, or it was not a thought that time that we can treat the lake also. The only thought is to protect the saplings. So thing is that it was just, I was just going with the flow, right? I do not have any plan. I do not know how to start. I always, at present, I really think about it, that time it was just a God wish that I should start the lake. Or I would say that the lake has chosen me. So 2016, 2017, then slowly, I start learning about the lakes. I start learning about the STP, sewage water. As I told that I always been a good student. So I read a lot about all the research papers for taking care of the lake, phytoremediation techniques, bioremediation techniques, and I started introducing that. So in 2019, when we created this floating treatment wetlands with the help of the HMDA, that was a very big year for me. And the lake water or the lake parameters were getting better and better day by day. Now the lake water is just, if you can understand BOD, so it is the BOD is between 8 to 10. And regularly the pollution control department is taking the water and checking. So monitoring, everything is done. And now at the lake it is 1 lakh plantation we have done. So 2019 we got, my organization got 3 national awards and 3 state awards. After that I seen that people have started
coming to the lake. They are showing the interest. Many volunteers, people are volunteering at the different lake. It's a good sign, right? Whenever you do work at the lake, you want the people should adopt the same kind of the model, or at least they should start coming on the lake. It's not about the adopting the model. So I'm really happy that my work is hitting the brains of people. It's brainstorming the people, and they wanted to come. And then very few lakhs we have completed this lake restoration. But the lake restoration doesn't mean that you just do some equipments. We put the floating aerators, solar aerators, and floating treatment wetlands, and after that you leave. No, lake maintenance is as important, right? Apart from that, as I told that here when we are doing a natural treatment, so in natural treatment, the lake has now more than 1,000 of turtles which is eating continuously the sludge disposal, which is again a very big problem for the conventional STPs. So if such kind of the STPs are created on many lakes, you will find out that in a very low cost money, even with the help of the community, you can create a sustainable lake restoration model. Lake never needs thousands of crores. Lake just need, or environment needs passion, ground level one, and little logic. Definitely love and respect. But initially you said that 2019, it was only in 2019 that people started recognizing your work. So what were those initial challenges when you know, थोड़ा कुछ हमें उस challenges के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत बार हम we have lot of good intentions to do good things, but you know, whenever you try to start something new, there are 10 other people who will try to stop you. So what were those initial challenges? So this is true, Ram. जब मैं start करना चाहती थी, that the moment I wanted to start an organization, I really wanted to tell to the people that if you want to do some good work, it doesn't mean that you should have a funding, you should have a lot of people, and you should have a back support or politicians, or no. If you just want to bring a change, a simple citizen can start. The problem here that with the people, जैसे ही अभी मैं कुछ प्रोग्राम देती हूँ या कुछ क्या अच्छा ऐसा करना है, लोग जो हैं वो फंडिंग कैलकुलेट करने लग जाते हैं, जबकि एनवायरनमेंट में अगर देखा जाए तो हमें फंडिंग की ज़रूरत ही नहीं है. कितना फंडिंग चाहिए? एक पेड़ चाहिए, एक मिट्टी चाहिए, और अगर कूड़ा निकालना है तो थोड़ा बहुत ग्लास चाहिए. कितना बड़ा फंडिंग है? तो प्रॉब्लम तो सब ये है कि हम लोगों ने हर चीज़ को इतना कॉम्प्लेक्स बना लिया और उसके साथ इतना सारा पैसा ऐड कर दिया है कि हमें लगता है अरे यार इतना सा पैसा हम कैसे लाएं, तो हम तो अकेले कर ही नहीं सकते. दूसरा लोगों की ये सोच है कि लेक्स पे काम करना है तो कुछ बैकअप सपोर्ट होना चाहिए, कुछ एमएलए का सपोर्ट होना चाहिए, कुछ. मैं तो यहाँ की बिलोंग तक नहीं करती हूँ. आई डोंट नॉट बिलोंग टू तेलंगाना, आई बिलोंग टू राजस्थान. तो मैं कई बार लोगों से ये कह सकती हूँ कि जब मैं राजस्थान से आके यहाँ पे एक लेक बचा सकती हूँ, राइट, जहाँ मुझे लैंग्वेज नहीं आती, खाना पीना डिफरेंट है, फेस्टिवल्स डिफरेंट है, हर चीज़ मैंने इतनी सारी नई चीज़ें देखी, तो यहाँ के तेलंगाना के जो खुद के लोग हैं वो अगर इनिशिएटिव लें तो अब यू कैन जस्ट स्टार्ट इट. ये मनी जो हमें रोकता है ना, उससे बाहर आने की ज़रूरत है. तो सबसे पहले ये ज़रूरत है कि मैंने बिल्कुल ज़ीरो बजट से स्टार्ट किया अपना ऑर्गेनाइजेशन, और आज भी मैं ज़ीरो बजट पे ही हूँ. लेकिन हाँ, द गुड थिंग अबाउट इट, मैंने बहुत ट्रस्ट गेन किया, और ट्रस्ट गेन करने के बाद मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि जो काम, अगर आपका जो पैशन है वो थोड़े बाद अपने आप दिखता है, मे बी टाइम लगता है. तीसरी चीज़ है मिथ. राइट, मिथ क्या है? अब हमारे यहाँ क्या हो गया है कि कुछ लोग हैं, जैसे कि हम बोलते हैं लॉबीज बना लेता है, जो कि चाहते हैं कि लोग ग्राउंड वर्क करें ही ना. वो चाहते हैं कि सिर्फ लोग मीडिया पे काम करें, ट्विटर पे काम करें, इंस्टाग्राम पे काम करें, लेकिन जो है ना ग्राउंड लेवल पे आके काम ही ना करें, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आके काम करेंगे तो असलियत पता चल जाएगी, रियलिटी पता चल जाएगी, और फिर बाकी सब लोगों को, जो डेमोक्रेटिक लोग जो डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व है, उनको काम करना पड़ेगा. तो गवर्नमेंट को, सबको बड़ा अच्छा लगता है अगर आप भाई ट्विटर पे ट्वीट करते रहो बस. पेड़ भी फिर आपको आगे फ्यूचर में ट्विटर पे ही मिलेंगे, राइट, क्योंकि आप ट्विटर पे पेड़ मांग रहे हो. कितना आसान है ना, कितना आसान है भाई. ट्विटर पे पेड़ रख लो, ट्विटर पे हमने डिमांड किया, ट्विटर पे मिल गए. अब जब ग्राउंड लेवल पे काम करने हैं तो उसके लिए लोग भागते हैं, क्योंकि एवरीबडी वांट्स अ लिटिल बिट लेजी लाइफ, राइट. सबके पास एक एक्सक्यूज है देने के लिए, यार आज संडे था, आज बच्चे का बर्थडे था, आज ये था, वो था. तो मैंने कहा यार सब चीज़ रखो और ऑक्सीजन भी लेना बंद कर दो. ऑक्सीजन वाटर भी खत्म करो, टेंशन ही खत्म करो ना एनवायरनमेंट की. अगर ऑक्सीजन चाहिए और वाटर चाहिए, राइट, ये दो चीज़ें तो बेसिक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो भाई एनवायरनमेंट में आगे काम करना ही पड़ेगा.
राइट। तीसरी चीज हम क्या, अरे भाई हम तो एनवायरनमेंट कॉन्शियस है, हम तो सारा ऑर्गेनिक फूड आइटम इस्तेमाल करते हैं, हम तो बड़े बिल्कुल सारा पेपर डिकम्पोजेबल आइटम यूज करते हैं, हम तो प्लास्टिक नहीं यूज करते, हम तो एनवायरनमेंट को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते। तो फिर हमें क्या जरूरत है क्लीनिंग ड्राइव के लिए आने के लिए? तो मैं कहती हूँ भाई एनवायरनमेंट को अगर तुम नुकसान नहीं पहुंचाते तो तुम्हारे घर के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे घर से सवेज भी नहीं आना चाहिए, और तुम्हारे घर से गार्बेज भी नहीं आना चाहिए। अगर ये तीन चीजें नहीं आ रही हैं तो तुम भी घर से बाहर मत, राइट, घर में बैठो आराम से। लेकिन अगर तुम्हारे घर से सवेज बाहर आ रहा है, गार्बेज बाहर आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आ रही है तुम्हारे, तो तुमको भी आना पड़ेगा। तो ये कुछ थॉट प्रोसेस है जिसमें हमने अपने आप को खुद सेटिस्फाई कर लिया है, जिसको हम आजकल एक नाम देते हैं स्यूडो एनवायरनमेंटलिस्ट। तो स्यूडो एनवायरनमेंटलिस्ट ने जो ग्राउंड वर्क है उसको बिल्कुल खत्म करके सिर्फ ट्विटर पे सब चीज छोड़ दिया। सो सब लोग इंस्टाग्राम ट्विटर बस उसको ही देखना चाहते हैं, राइट, उसी से खुश भी हो लेते हैं, राइट। आज मैंने पानी दिया पानी को, और इतना बड़ा इंस्टाग्राम पे आ जाता है, सब बड़े खुश, अरे पानी दिया वे, पानी दिया वे, पानी। Guys, I'm very happy that social media is bringing a lot of changes, right? लेकिन कहीं कहीं सोशल मीडिया हमें ग्राउंड मीडिया से बहुत दूर करता चला जा रहा है, जिसके लिए मैं थोड़ा सा कंप्लेन करती हूँ, राइट। आई सीरियसली वॉट, क्योंकि सोशल मीडिया उस ग्राउंड मीडिया को भी का जो गैप है उसको अगर फिलअप कर सके तो ये हमारे लिए बहुत बेटर होता चला जाएगा। अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग इस गैप को कैसे फिलअप करते हो। लेकिन मैंने इतने लोग देखे इंस्टाग्राम पे, ऐसा लगता है जैसे बस बिल्कुल धरती साफ ही हो गई, और जब ग्राउंड पे मैं उन लोगों को बुलाती हूँ एक नहीं आता। तो मैं सोचती हूँ थोड़े टाइम पे मैं प्रोग्राम्स भी इंस्टाग्राम पे ही करूंगी, इंस्टाग्राम पे ही क्लीनिंग ड्राइव करूंगी और इंस्टाग्राम पे ही प्लांटेशन करूंगी, क्योंकि ग्राउंड पे तो कोई आता ही नहीं। ये कितनी बार हो गया, यहाँ पे एक हमने बायोएंजाइम का प्रोग्राम किया था, क्लीनिंग ड्राइव्स और प्लांटेशंस बहुत रेगुलरली करती हूँ, तो ऐसा ऐसा दिखता है जैसे कितना लोग बायोएंजाइम यूज कर रहे हैं, जेट्स कि भाई हैदराबाद इज फुल ऑफ बायोएंजाइम। जब मैंने यहाँ पे डिमांड किया तो सबने कहा नहीं हम तो बना ही नहीं रहे। तो ऐसी ऐसी रियलिटीज मेरे सामने आई हैं, तो मुझे लगता है कि हम क्यों अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। तो ये बात जानने की जरूरत है कि भाई ये डिग्रेडेशन बहुत फास्ट हो रहा है। 20 साल पहले इस टाइप के एक्सक्यूजेस ठीक थे, राइट, लेकिन अब इन एक्सक्यूजेस की एक्चुअली जगह नहीं है। आपको ग्राउंड लेवल पर आकर जब आओगे तभी आप डेमोक्रेटिकली चेंज ला पाओगे। जो हम कहते हैं अरे हमारी गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, गवर्नमेंट इससे नहीं सुन रही है क्योंकि तुम ढंग से सुना ही नहीं रहे हो। ढंग से सुनाने के लिए आपको थोड़ा सा गवर्नमेंट लेवल पर आके सुनाओ, देखो गवर्नमेंट पक्का सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी। अब रीजन क्या है कि अगर चेंजेस लाने हैं पॉलिसीज में और इन सब में, उसमें भी बहुत मास स्केल में लोगों को आके डिमांड करना पड़ेगा। लोग डिमांड क्या करते हैं, अरे रोड खराब है, रोड नहीं है, फ्लाईओवर नहीं है, हम चल नहीं पा रहे, तो गवर्नमेंट वही तो बना रही है, सड़क बना रही है, फ्लाईओवर्स बना रही है। लोग जो डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट बिल्कुल डेमोक्रेटिकली वही काम कर रही है, फिर किस बात के लिए नाराजगी। आज 50 लोग ऐसे नहीं है, आज मैं खड़ी हो जाऊं यहाँ पे पूरे हैदराबाद में तो 50 लोग नहीं मिलेंगे मुझे, सिर्फ 50 की बात करिए, ओनली 50 पीपल जो कि आके बोले कि नहीं मुतलिका हम साथ में खड़े हैं और जो है ना हम क्लीनिंग ड्राइव करेंगे। तो ये सिचुएशन है, उसमें मुझे हाथ जोड़ जोड़ के बुलाने पड़ता है एज इफ कि भैया मेरे ऊपर, मैं इस लेक को कहीं लेके जाने वाली हूँ, मेरी प्राइवेट लेक है और मुझे आके इस पे काम करना पड़ेगा। तो कहने का ये मतलब है ये हमें थॉट प्रोसेस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखो बहुत सारी सोशल सर्विसेज है, आप कर सकते हो, देयर वैरायटी ऑफ सोशल, लेकिन एनवायरनमेंट कॉमन है। एनवायरनमेंट के बिना कोई नहीं जी सकता। आप ऑर्फनेजेस करते हो, आप ब्लैंकेट ड्राइव्स करते हो, आप फूड ड्राइव्स करते हो, बहुत अच्छी बात है, मैं किसी भी चीज़ के अगेंस्ट नहीं। लेकिन आपको लगता है जिनके लिए आप कर रहे हो और जो लोग कर रहे हैं वो क्या एनवायरनमेंट के बिना जी सकते हैं? तो एनवायरनमेंट ऐसा है कि सबका टॉपिक होना चाहिए, ये सिर्फ मेरा टॉपिक है तो मुझे कहते हुए अपने ऊपर शर्म आती है कि इतने सालों से ये मैं ही टॉपिक क्यों लेके बैठी हूँ भाई, राइट, किसी और को क्यों नहीं रियलाइजेशन हो रहा है। अच्छा चलो मेरे साथ मेरे साथ काम करने अगर नहीं पसंद तो हजारों लेके आप किसी भी लेक पे काम कर लो, काम शुरू तो करो, इनिशिएटिव लो, तो प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आते हैं लेकिन सॉल्यूशन मिल जाता है। तो मेरा कि कहने का अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे कम्युनिटी फोबियाज हो गए। आई जस्ट डिस्कसिंग इन द मॉर्निंग टुडे, लोगों को चींटी से डर लगता है, लोगों को स्पाइडर से डर लगता है, लोगों को लिजार्ड से डर लगता है, लोगों को सांप से डर लगता है, लोगों को मोर से डर लगता है, लोगों को मंगू से डर लगता है, लोगों को कछुए से डर लगता है। इतने सारे डर से तो एनवायरनमेंट चाहिए क्यों? बोलो यार सारी लेक्स खत्म कर दो, ढप दो, बिल्डिंग बना दो, छुट्टी करो। क्योंकि पेड़ लगाओगे वो भी प्रॉब्लम, पेड़ आएगा तो उसके साथ भी मकड़ी आती है, उसके साथ भी लिजार्ड आती है। भाई वी कैन नॉट चूज ना कि सिर्फ मुझे बटरफ्लाई चाहिए, बस मुझे अच्छी वो चिड़िया भी चाहिए, सुंदर वाली चाहिए, कौवा नहीं पसंद। ऐसा हम चूज नहीं कर सकते यार, ये चॉइस हमें अवेलेबल, मेरे को तो जहां तक पता है भगवान ने हमें चॉइस अवेलेबल नहीं करी है।
राइट? अदरवाइज अगर ये चॉइस अवेलेबल होती तो वो लिजार्ड भी यही कहती मुझे ह्यूमन नहीं चाहिए, राइट? तो उस केस में ऑलवेज से कि भैया सेव द ह्यूमंस होना चाहिए, सेव द अर्थ का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इनमें से एक भी अगर खत्म हो गया तो ह्यूमंस भी खत्म हो जाएंगे। जैसे कि फूड चेन होती है वैसे ही स्केवेंजर चेन भी होती है, और वो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। जितना फूड चेन इम्पोर्टेंट है, जिसमें ग्रास होती है उसको खरगोश खाता है, खरगोश को फिर एक बड़ा जो है उसका प्रेडेटर खाता है, फिर उसको शेर खाता है, शेर के बाद फिर ह्यूमन आ जाता है, वॉटेवर, तो ये एक फूड चेन बन गई। उसी तरीके से स्केवेंजर चेन उतनी इंपॉर्टेंट है कि पहले एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस स्लज को खाता है जो हम प्रोड्यूस करते हैं, और फिर उसको जो है फाइटोप्लैंक्टन्स खाते हैं, फिर ज़ूप्लैंक्टन्स खाते हैं, फिर उसको फिश खाती है, फिश को फिर जो है वो दूसरा एक वर्ड खाती है या टर्टल्स खाता है। तो स्केवेंजर चेन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, तो उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि भाई अगर हम इन सब चीज़ों का इम्पोर्टेंस नहीं करेंगे तो फिर क्यों चाहिए भैया एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीज़ों से ना कम्युनिटी फोबिया से बाहर आना पड़ेगा कि भाई सॉइल छू ली और ये इतने सारे बैक्टीरिया भी कोरोना हो गया, वो सॉइल को भी आप ग्लव्स पहन के छुएंगे। अगर हमें बॉन्डिंग लानी है और अगर हम वाकई हम मदर अर्थ बोलते हैं ना, उस मदर, अपनी मदर को हम ग्लव से जाके तो नहीं छूते हैं, है ना? तो अपनी मदर को हम प्यार करते हैं, लाइक जो भी हमारी मदर है जैसी भी है, राइट? कई के बार तो बहुत पसीने में भी होती है हमारी माँ जब किचन में काम करती है, कई के बार मिट्टी में काम कर रही होती है, मिट्टी में भी होती है, हम सीधे जाके हक कर लेते हैं, है ना? हम नहीं सोचते कि नहीं मेरी माँ नहा धो के आएगी बस तभी मैं बात करूँ। तो वी एक्सेप्ट बिकॉज वी लव। लव कहीं गायब हो गया, और वो जब तक लव वापस नहीं आएगा ना, हम सिर्फ सुपरफिशियली प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, प्रोटेक्टिंग द लेक्स, प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड, प्रोटेक्टिंग द अर्थ, ये सब बोलते रहे। आपने कहा कि मैं अगर अब आज खड़ी हो जाऊंगी तो 50 लोग भी नहीं आएंगे, तो आपको कभी मतलब डू यू फील डीमोटिवेटेड कि मैं मतलब कभी कभी ऐसे होता होगा कि यार मैं इतना कुछ करना चाहती हूँ बट लेकिन है ना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या तो तब उस वक्त पे आप कैसे अपने आप को मतलब। राम, इसका फायदा ये हुआ जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था ना, तो मुझे तो सब यही बोलते थे कि अकेले तो कोई स्टार्ट ही नहीं करता है, आपका तो टीम होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब मुझे नहीं समझ में आता था कि कहाँ से टीम लाऊं, क्योंकि कोई स्विच वाटर में काम ही नहीं करना चाहता था, तो टीम पकड़ के कहाँ से लाऊं? प्रोफेसर से बात करती थी, उन्होंने भी कभी काम नहीं किया था, और वो भी ये कि अच्छा मधुलिका आने जाने का हमारा पैसा दोगी क्या? अब यार रीजन ये, मुझे क्या पता कि तुमने जब कोई ऐसा काम किया ही नहीं तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट दैट यू कैन गिव मी अ बेटर एडवाइस। तो रीजन है एवरीबडी इज लाइक दैट कि अगर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी है तो वो ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा फंडिंग है, उसके बाद ही काम हो पाएगा। एक तो उस थॉट प्रोसेस से मैं बाहर लाना चाहती हूँ लोगों को कि चेंज हमेशा एक ही इंसान करता है। बुद्ध भगवान को देख लो, अकेले थे। गांधी जी को देख लो, जब वो चलते थे तो अकेले, सबसे गांधी मार्च में सबसे अकेले आगे चलते हैं। जब आप चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, जो सालों से कोई एक चीज को बदलने की कोशिश कर रहे हो, शायद आपको अकेले ही चलना है। एंड आई एम रेडी टू बिकम अ बकरी फॉर अ सैक्रिफाइस। तो दिस इज स्पेशल, दिस इज वेरी ट्रू, क्योंकि पर्पस ये है कि मैंने कहा ना सुपरफिशियली आपको, मुझे बहुत सारे मेरे पास वॉलंटियर्स हैं, लेकिन रियली वर्किंग नो। इवन यहाँ के जो ओरिजिनल हैं आईटी कंपनीज, आईटी वाले तो ऑब्वियसली नहीं काम कर सकते, ठीक है वो एक डोनेशन कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो भी जनता है, आपको वही कितना आप इस स्विच वाटर की साइंस को समझ पाते हो, उसके लिए कोई रेडी ही नहीं। लोगों को सिर्फ याद आता है पानी जब फेस्टिवल्स होते हैं, तब जरूर पानी याद आता है, और तब जरूर अरे हाँ ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, लेकिन बस अपना गणेश डाल के चले गए, सब भूल गए। तो हम इतने शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले लोग रह गए हैं, तो हमें कभी थॉट प्रोसेस भी नहीं सोच पाते कि यार ये अगर पहले 10 साल पहले इतने सुंदर लेक की अब खराब हो रही है, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? हम पढ़े लिखे हैं, तो क्या यार हम कुछ एक रोल प्ले कर सकते हैं? और इतने सालों से एनवायरनमेंट उन्होंने देखा है, प्लांट्स अपने आप बड़े होते हैं, हर चीज़ अर्थ अपने आप रिस्टोर करती है। तो अपना क्या हम बेसिक साइंस 10th 11th 12th की नहीं लगा के सोच सकते हैं कि भाई इसमें क्या ऐसी साइंस लगेगी, क्यों अपने आप को नहीं रिस्टोर कर पा रही है? तो कई बार मुझको ऐसा लगता है कि हम समझते हैं पर हम करना नहीं चाहते हैं। मुझसे लोग कहते हैं कि मतलब अवेयरनेस की कमी है। तो मैंने कहा यार इतना बड़ा स्वच्छ भारत हो रहा है, कूड़ा मत फेंको, कूड़ा मत फेंको, कूड़ा मत फेंको, फिर भी उसके बाद लोग कूड़ा फेंकते हैं। कैसे अवेयरनेस लाओ कि कूड़ा मत फेंको, जहाँ इतने लार्ज स्केल, और इतनी अवेयरनेस के बावजूद भी जो कूड़ा उनको फेंकना है, दे आर डिटरमिन्ड, उनको चेंज नहीं कर सकते थे।
तो ऐसे सिचुएशंस पे ना, पता है राम, मुझे बड़ी सारी चीजें याद आती हैं। मे भी तुम्हें थोड़ा सा मजाक भी लगे, लेकिन ना जब आप काम करते करते ना आप थोड़े से स्पिरिचुअल टाइप हो जाते हो, और जब आप स्पिरिचुअल टाइप हो जाते हो तो आपको ना देवता और राक्षस याद आने लगता है। तो देवता आर ऑलवेज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द थिंग, एंड राक्षस इज ऑलवेज टुवर्ड्स डिस्ट्रॉइंग द थिंग्स। ठीक है, और जब इन दोनों का बहुत इम्बैलेंस हो जाता है तब भगवान अवतरित होकर आते हैं, राइट। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि भगवान कुछ भी नहीं थे, ही इज ऑलवेज बीन अ क्लीनर क्लीनिंग ड्राइव, ही इज क्रिएटिंग द क्लीनिंग ड्राइव ऑन द अर्थ, एंड ही इज द गार्बेज पिकर, राइट, ऑलवेज से। बिकॉज जब जब वो आए हैं तो उन्होंने उन पोल्यूटर्स का नाश किया है जो कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे थे। तो दैट मीन्स द बिगेस्ट क्लीनर और द गार्बेज पिकर इज द गॉड ओनली, राइट, बिकॉज ही इज क्लीनिंग द अर्थ। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप ये सोचते हो कि भाई कुछ लोग चेंज ही नहीं होना चाहते हैं, समझना ही नहीं चाहते, तो फिर आप उनका कोई और इलाज नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस रह जाते हैं, या फिर तो हम अगेन बैठ के भगवान का वेट करें कि भैया विष्णु जी प्लान कर रहे हो धरती पे दोबारा आने का, या फिर हम खुद कुछ करें। तो अगर हम अपने आप को एक बेटर जनरेशन, बेटर हम पढ़ा लिखा मानते हैं, तो मुझे लगता है कि इतनी बुद्धि अपने आप में आनी चाहिए। दूसरी चीज मैं कई बार लोगों को बताती हूँ कि कृष्ण भगवान जिनको हम बहुत ज्यादा मानते हैं और उनका मैंने बहुत स्टडी किया, तो वो सबसे बड़े रेवोल्यूशनिस्ट, एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट थे। उनके बहुत सारे एपिसोड्स हैं, जिसमें से एक एपिसोड है ये गोवर्धन पर्वत का, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई इंद्र की पूजा मत करो और गोवर्धन की पूजा करो, जिसमें इंद्र तक नाराज हो गए थे। और आपको शायद स्टोरी पता हो कि उन्होंने बहुत बारिश कर दी थी, फिर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पे उठा लिया था। तो हमारे यहाँ जो फर्स्ट, जब हम किसी चेंज मेकर की बात करते हैं, वो कृष्ण भगवान है। और जिंदगी भर अकेले रहे हो जिंदगी भर थ्रू आउट, नो डाउट उनके पास बहुत सारी रानियां थी, उनके पास उनका वो खुद सिटी मथुरा जिसमें वो पैदा हुए थे उसमें से उनको हटा दिया गया। उसके बाद पूरे पूरे के पूरे इंडिया में कहीं पे भी उनको लैंड नहीं दी गई, तो उन्होंने द्वारका में लैंड ऊपर उठाई और अपना द्वारका बनाया। और ये द्वारका बनाने के बाद जब वो चले गए तो लैंड अपने आप नीचे चली गई। तब ये सोचिए, वो सच ए बिग चेंज मेकर, बट हाउ दैट टाइम द पीपल वर ट्रीटिंग हिम। आज की डेट में हम भगवान 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 और राधे 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 बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन आप जस्ट इमेजिन करिए, उनके बारे में पढ़िए, जब उन्होंने गीता इतनी अच्छी भूती और गीता को मैं रेगुलरली पढ़ती हूँ, तो मैं सच में ये बात सोचती हूँ कि भाई कितना मुश्किल हुआ होगा कृष्ण जी के लिए इन सब चेंजेस को लाना और लोगों को समझाना। दैट इज हाउ, राइट। तो ये तो हमारे शास्त्रों में चला आ रहा है कि अगर आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो आपको हमेशा क्रिटिसिज्म ही मिलेगा। भाई रन छोड़, उनको जो नाम दिए गए हैं वो इसी तरीके से नाम दिए गए हैं, सो पीपल वर अ लिटिल बिट क्रिटिकल टुवर्ड्स हिम, क्रिटिसाइजिंग टुवर्ड्स हिम। तो आप कह सकते हो वही सारी चीजें रिपीट होती हैं हर बार, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये कई में, जैसे मैंने कहा, बहुत सारी प्रॉब्लम जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, जब उनका सोल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर मैं थोड़ा अपने स्क्रिप्चर्स की तरफ चली जाती हूँ, और तब मुझे रियलाइज होता है कि नहीं, इसी तरीके से राम भगवान थे। राम भगवान ने जब पूरी इतनी सेना बनाई कि राम भगवान की पूरी टीम में सारे, मछली से लेके गिलहरी से लेके बंदर से लेके भालू से लेके सब थे, ह्यूमन बींग्स को छोड़ के, राइट। तो वो अकेले उन्होंने पूरी जाके फाइट करी। तो ये आपको इतने सारे प्रमाण देते हैं कि अगर आपको चेंज लाना है तो शायद आपको अकेले ही चलना होता है। हाँ ठीक है, लोग बाद में आपको जब आप मरा जाते हो तब होता है, लोगों को लगता है कि हमने कुछ किया, लेकिन जब जिंदा होते हो तो दिस इज हाउ वी आर। एंड तो अपना डिसीजन है कि आपको लड़ते हुए मरना है या हाथ बंद करके मरना है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं फाइट करती हुई मरूंगी, दैट्स इट। तो आपके अपने डिसीजन अपनी लाइफ। शुरुआत में आपने कहा मरने के बाद, या तो फिर कुछ सक्सेस पाने के, मतलब कुछ अगर अब जैसे ये लेक कोई देख लो, अब मतलब काफ़ी अच्छा हो गया है, तो फिर लोग आते हैं और फिर ये बात सही है कि लोगों को लेक बहुत सुंदर लगती है और लोग आके इसको मॉडल करना चाहते हैं, लेकिन जैसी बात आती है मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस वो जब एसोसिएटेड होता है ना, पेशेंस के साथ एसोसिएटेड होता है। और वो जो पेशेंस का वर्ड एसोसिएटेड होता है ना, वो तुमको एनर्जी देता है, एक ऑरा बनाता है, और वो एनर्जी इस एनवायरनमेंट से मिलती है। आई होप अगर तुम लोगों ने देखा है, हमारे ऋषि मुनि सालों सालों जाके हिमालय पे बैठ जाते हैं और वो तपस्या करते हैं, तो एक एनर्जी फॉर्म होने लग जाती है। वो एनर्जी लोग उतना पेशेंस, लेकिन उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है, राइट। वहां जाके आपको बिल्कुल चुपचाप बैठना और करना। तो अगर ये देखोगे तो ये लेक मुझे एनर्जी देती। मेरा, अगर मैं हफ्ते भर भी बिना खाए पीटे यहाँ पे आराम से बैठ सकती हूँ,
और आई लिटरली गेट एनर्जी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेक और दिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। मतलब मुझे ऐसा लगता है अभी मैं बुलाऊंगी तो मेरे सांप, मेरे कछुए, सब चीजें जो है ना वो एज इफ दे नो मी ईच अदर, राइट। और हम लोग इतने आराम से एक दूसरे से टॉक करते हैं, बातें करते हैं, इतना रिलैक्स एनवायरनमेंट है, मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है यहाँ पे बैठ के। उस लेवल पे पहुंचने के लिए लोग तैयार नहीं है। लोगों को हर चीज चाहिए, स्विच ऑन किया, लेक साफ हो गई, बस चलो। तो पीपल आर इन मोर इन नंबर गेम कि हमने 10 लेक कर दिए, हमने 12 लेक कर दिए, हमने 50 लेक कर दिए, राइट। तो वो नंबर गेम में चीजें नहीं होती। ये एक जरूरत है कि जब हमने पोल्यूशन में इतने सालों लगे हैं तो उसके रेस्टोरेशन में भी बहुत सालों लगेंगे। और दूसरा ये है कि जब फेस्टिवल्स क्रिएट किए गए थे तो फेस्टिवल्स जो हमारे यहाँ इतने सारे, हम अगस्त से लेके अक्टूबर तक जो जो हम फेस्टिवल्स क्रिएट करते हैं, उनका बेसिक पर्पस था कि लेक्स या उनके आसपास के जो नेचुरल हेरिटेजेस हैं उनका वो खुद ध्यान रखें। लेकिन अभी क्या है, हमको जो हमारे फेस्टिवल्स है ना, उनको मुझे ऐसा लगता है दोबारा रीओरिएंट करने की ज़रूरत है, उनको भी रिजुवेनेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग मोर टुवर्ड्स शोबाजी की तरफ चले गए हैं rather than उन फेस्टिवल्स का थॉट प्रोसेस छूट गया है। तो ये फेस्टिवल्स का बेसिक मीनिंग था टू रिस्पेक्ट द वाटर, टू रिस्पेक्ट द नेचर, टू रिस्पेक्ट द बायोडाइवर्सिटी। बट वो सब हमारा वो जो मेन पॉइंट था वो तो कहीं गायब हो गया। उसकी जगह हम नाच गाना और हमने उनको थोड़ा सा शोबाजी टाइप ज़्यादा बना लिया है। तो मुझे लगता है दोबारा से मतलब फेस्टिवल्स को भी थोड़ा सा दोबारा रीओरिएंट करने की ज़रूरत है। तो ये बात ठीक है, ये बात मैं मानती हूँ कि भाई आपकी जब प्रोग्रेस होती है तो उसके बाद लोग आते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको अच्छा लगता है। ऑब्वियसली एवरीबडी नीड्स अप्रिशिएशन, लेकिन आपको तब जरूर अच्छा लगेगा जब आप लिटरली ये देखोगे कि भाई हर एक लेक पे एक लोग पेशेंस से बैठे हैं, राइट। अपनी अपनी जो कम्युनिटी है, जो आसपास की कम्युनिटी है, वो इस लेक को एक लेक की तरह देख रही है, जैसे कि मैं देखती हूँ कई बार टेम्पल की तरह या माँ की तरह। तो मुझे ना उस लेक से भागने का मन नहीं करता कि नहीं अब मैं दौड़ के दूसरी लेक पे जाऊं, दूसरी से तीसरी लेक पे जाऊं। आई वांट पीस, क्योंकि बहुत शांति मिलती है। तो वो शायद हमारे पास टाइम नहीं रहा या इंटरेस्ट खत्म हो गया है या एनवायरनमेंट को समझना नहीं चाहते। तो अभी जब आप दूसरे लेक्स, ये लेक होने के बाद मतलब कीपिंग इट सस्टेनेबल, या मेंटेनेंस स्टिल अभी भी क्या आपको सपोर्ट मिल रहा है कि लोगों से, बिल्कुल और डू यू सी अ चेंज इन माइंडसेट ऑफ द पीपल? ऑब्वियसली मतलब ऑन ग्राउंड, मतलब अभी तक फिर भी वो है कि मतलब ऑन ग्राउंड बहुत खुश हूँ ये राम, सच में। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की भी बहुत बड़ी दया है मेरे ऊपर। लेक की तो खैर है ही ब्लेसिंग्स मेरे साथ। अब मैं ये बात देख रही हूँ कि मैं अपनी जो जो मैंने इस लेक से सीखा, मैं मतलब ये टीचर है मेरी लेक, तो मैंने इस लेक से बहुत कुछ सीखा। और उस लर्निंग के बाद जब मैं और चीज़ें लोगों को बताती हूँ तो लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, और वो और मुझे सेटिस्फेक्शन देता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब पॉसिबल है कि चेंज ला सकते हैं। अब इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि पॉल्यूशन और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो शायद एक सही सॉल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल कई कई बार तो मैं लोगों से कहती हूँ कि मैं एक रिलीजन शुरू करूंगी, एनवायरमेंटलिज्म। हो गया, सारे हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम सब हो गया, अभी कुछ स्टार्ट करते हैं, चलो सब लोग मिलके एनवायरमेंटलिज्म एक रिलीजन ही शुरू करते हैं। तो पर्पस एक्चुअली ये है उसका, जोक्स अपार्ट, कि एक इस तरीके से ग्रुप जो कि वाकई ग्राउंड लेवल पे आए, समझे, और जो हमें एनवायरनमेंट से दूर कर रहे हैं जो लोग, उनको अगेन जो है ना वो एक डिस्टेंस और गैप को भरे। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम हमेशा ये कहते हैं कि नहीं भाई एक्सक्यूज दिखाते हैं, अरे सैटरडे संडे हम बिजी थे, नहीं भाई हम लोग पहले भी थे। मुझे जहाँ तक याद है गंगा के पे ऊपर स्नान करना, अगर हमारा कल्चर अगर आप पलट के देखिए तो हर महीने में फेस्टिवल्स ही ऐसे बनाए गए हैं कि तुम वाटर बॉडी को जाओ, टच करो, देखो। तो फेस्टिवल्स के लिए थ्रू नहीं, हम अपनी मर्जी से भी आए और विजिट करें और एंजॉय करें। और एंजॉय करने के बाद में उन सब चीज़ों को भी मैटर करें कि नहीं देखो छिपकली भी इंपॉर्टेंट है, लिजार्ड इज इंपॉर्टेंट, स्पाइडर इज इंपॉर्टेंट, एंड इज इंपॉर्टेंट, हमें नहीं मारना है, पैर के नीचे नहीं दबाना है। तो वो सारे थॉट प्रोसेस ना वापस लाने की ज़रूरत है। हम लोग बहुत, इनफैक्ट मैं तो बहुत मिस कर रही हूँ कि जिन जिन चीज़ों से हम बचपन से बड़े हुए, और अभी भी आप गाँव में जाके देखिए, आप गांव में जाके देखेंगे तो वो इन सबको, कौवा हुआ, ये सारी चीज हमारे रिलीजन में इस तरीके से डाली गई थी कि हमेशा हम इनकी रिस्पेक्ट करें।
राइट। अगर किसी की डेथ होती है तो हर एनिमल को एक 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 एक, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, भाई तेरे को रोटी आके खानी है ये, बिकॉज ये सब इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो इनको रिलीजन में इंट्रोड्यूस किया गया ना। तो वो इम्पोर्टेंस जो हम खत्म करते चले जा रहे हैं। अब देखिए हैदराबाद में मुझे नहीं लगता आप लोगों ने कौवे देखे होंगे कभी। कौवे हो गए, बड़ी मुश्किल से कभी तोता, स्पैरोज, बहुत सारे लोग स्पैरो प्रोटेक्शन कहते हैं, पता नहीं क्यों क्रो प्रोटेक्शन कब आएगा। क्रोज तो बिल्कुल ही नजर नहीं आते। और पिजन्स का इन्वेसिव स्पीशीज शुरू हो गया, पिजन्स एक्सेस में आ गए। तो हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई कितना डिफरेंस हम ले आए हैं। और पता नहीं क्यों लोगों को स्पैरो ज्यादा पसंद है और क्रो कम पसंद है, जो भी रीजन आवाज रीजन हो सकता है, बट क्रो इज वेरी गुड स्केवेंजर, राइट। वो आप कुछ भी अगर डेड चीज पड़ी हो तो पूरा उसको फिनिश अप कर देता है, इवन अगर वो डिटराइट कंडीशन में हो। अदरवाइज क्या होता है, हर चीज फ्रेश, कोई अगर ये चीजें भी तो होती हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जब वो फ्रेश स्टेट में होता है वो खाता है, लेकिन कौवा उस स्टेट में भी खा लेता है जब उसमें बहुत ज्यादा हार्मफुल बैक्टीरिया उत्पन्न हो चुके होते हैं। तो क्रो इज अ वेरी गुड एनिमल, आई मीन बर्ड। लेट्स सी, तो ये जो हम कम्युनिटी फोबिया से बाहर आएंगे, हम एक वही सोच जो हमारी पुरानी थी, या फिर तो उसी सोच को वापस लाइए, या उसी सोच को नए पैकेट में हमें परोसना पड़ेगा, तब शायद लोग उसके क्लोज आ पाए। Can you tell us little bit about what was the state of this lake when you first came? और अभी जैसे फ्लोरा फौना, बर्ड्स, काफी सारे बर्ड्स आने लगे, स्पीशीज। तो राम, ये जो स्टेयर्स तुम देख रहे हो, तो इन स्टेयर्स पे पूरा गार्बेज भरा हुआ था, और गणेशा जी के ऐसे हाथ पड़े हुए थे। वो मैं कभी नहीं भूल पाती, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, तो मैंने गणेश इमर्शन नहीं देखा था कभी भी। तो ये फर्स्ट टाइम था जब मैं, क्योंकि यहाँ पास में आके रही और पास में ही लेक थी, तो मैं अपने बच्चों को लेकर आई थी, तो वो मेरे को इतने डेंजरस लग रहे थे, और थोड़ा सा डर लग रहा था, ऑब्वियसली डर लग रहा था। खैर फिर भी थोड़ा मैं ओवर एक्साइटेड रहती हूँ, कई बार मैं बोलती हूँ आई एम CID प्रद्युमन। तो मैं जैसे तैसे उस कूड़े से जंप करते करते समहाउ मैं नीचे तक आई, और ये पूरा एरिया वाटर हाइसेंस से भरा हुआ था। तो कुछ एक वाइट कलर का एक ह्यूमन बॉडी जैसा लग रहा था, वो तैर रहा था। तो मुझे समझ नहीं आया कि भाई क्या है क्या है। फिर मेरे हस्बैंड भी थे उस टाइम पे, तो मैंने बोला, मैंने कहा देखो ये क्या है, मुझे डेड बॉडी लग रही है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हम लोगों ने पुलिस कॉल किया, और पुलिस ने आके 100 डायल किया, पूरा 2.5-3 घंटे बैठे, पुलिस आई और दे हैव कंफर्म यस इट्स अ डेड बॉडी। अब उनका ये कहना था, जो हमें बाद में न्यूज़ मिली, कि शायद कोई ड्रिंक करके आ गया था और फिसल गया और वो मर गया। मुझे नहीं पता बाकी उसकी रेस्ट ऑफ द ट्रूथनेस क्या था। ये मेरा फर्स्ट जो एनकाउंटर था लेक से, क्योंकि लेक में इतना सारा गार्बेज था कि आप कहाँ पैर रखो और कहाँ पैर रखो, मतलब कहाँ पानी है और कहाँ गार्बेज है और कहाँ लैंड है, ये तक आइडेंटिफाई करना बहुत टफ था। जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे हमेशा कूड़ा जलता रहता था, इमोशन पॉइंट तो कूड़ा जलता रहता था, तो उस साइड से आओ तो धुआं 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 रहता था। तो और ये सब चीज़ें आपको बहुत लोगों से यहाँ आसपास सेम सुनने को मिलेगी, कि कंटिन्यूसली गार्बेज डाल के उसको गार्बेज बंद कर दिया जाता था। फिश हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारी कॉर्नर्स में इकट्ठी हो जाती है, जब फिश डेड हो जाती है तो कॉर्नर्स में इकट्ठी हो जाती है। तो उस वाले कॉर्नर पे मुझे बहुत सारी डेड फिश दिखती थी। तो जैसे मैंने कहा, भी शुरू शुरू में समझ नहीं आता भी क्यों मर रही हैं, कि पॉल्यूशन की वजह से बन रही हैं, तो सेम सिचुएशन थी। और मतलब मुझे अभी भी याद है, ऐसे भैंसे बफेलोस तैरती हुई आती थी, वो एक बस थी। बाकी सब चीजों का तो ये हाल था, एक भी प्लांट नहीं था, कुछ नहीं था। आप जो यहाँ पे इतनी ग्रीनरी देख रहे हो, कुछ भी नहीं था। एक सामने वाला बड़ा पेड़ था, बस सिर्फ एक ये पेड़ था यहाँ, और कुछ भी नहीं था पूरा। तो कभी कभी जब मैं यहाँ पे प्लांटेशन कर रही होती थी या वाटरिंग कर रही होती थी, तो ये ऐसा हाल होता था कि ये भी पेड़ आधे करीब 2-3 महीने के लिए अपनी ना लीव्स छोड़ देता है, बिल्कुल गंजा हो जाता है पेड़। तो मेरे पास जगह नहीं होती थी इतनी सी भी खड़े होने की, कि मैं छाया में बैठ जाऊं और कुछ पानी पी लूं या कुछ कर लूं। इतनी तेज धूप पड़ती थी इस लेक पर। अब बिल्कुल चेंज है। आई एम वेरी थैंकफुल कि प्लांट्स हार्डली 5 years ओल्ड है और इतने बड़े हो गए हैं। तो ऑल दीज आर द ब्लेसिंग्स ऑफ द लेक ओनली। तो द पर्पस इज दैट ये सिचुएशन था इस लेक का, और ऑब्वियसली पानी में से स्मेल आती थी, जैसे मैंने आपसे कहा, और आप आके बैठ नहीं सकते थे यहाँ पे, और लोगों का एटीट्यूड भी नहीं था। और अभी तो खैर फिर भी बहुत लोग ट्रैवल कर रहे तब तक, क्योंकि कूड़ा जलता रहता था, तो कोई से आता भी नहीं था, बिल्कुल ऐसा थोड़ा हॉरर एरिया लगता था। और जैसे मैंने कहा, एंटी सोशल एक्टिविटीज वो सब बहुत ज्यादा होती थी, रात में भी बहुत होते थे। तो ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि भाई इनिशियल स्टेजेस ऑफ द लेक इसका बहुत ही बुरा हाल था लेक का। एनक्रोचर्स को लगा, जो रियल एस्टेट यहाँ पे थे,
कि मैं थोड़े दिन काम करूँगी और उसके बाद चली जाऊँगी, जैसे कि नॉर्मल लोग करते हैं कि भाई थोड़ा बहुत काम किया उसके बाद छोड़ के चले गए। तो इसीलिए यहाँ पे सीवेज पाइप्स लगे हुए हैं, अगर आप बाहर देखेंगे तो जो भी सीवेज आता था उनको ये था वो पूरा डाइवर्ट करते, लेक को सुखा के इसको पूरा इसके ऊपर बिल्डिंग बनाने का प्लान था। लेकिन जब मैं यहाँ से गई ही नहीं तो वो स्विच वाइज प्राइवेट पड़े हुए थे और वो उनमें जो है वो कुत्तों ने उन सब ने घर बना लिया था, बंड के ऊपर पड़े हुए थे ऐसे लेटे जैसे पड़े रहते हैं नॉर्मली। और कोई आ ही नहीं रहा था क्योंकि गवर्नमेंट की वो थी नहीं, तो गवर्नमेंट ले जाना नहीं चाहती थी, प्राइवेट पार्टी अपना डाइवर्ट कर नहीं पा रही थी। तो फिर हम लोगों ने सारे स्विच पाइप्स इकट्ठे करके पेंट कर दिए कि भाई जिसको लेके जाना है लेके जाओ, हम एक तरफ खड़ा करके रख रहे हैं बिकॉज। तो ये तो मेरा ख्याल है हैदराबाद की मैक्सिमम लेक्स का हाल ऐसा ही मिलेगा आपको। अब इतने सालों में हमारे पास लेक पे यहाँ पे 1 लाख प्लांटेशन हम लोग कर चुके हैं, पूरा सरवाइव कर रहा है। बहुत सारा मॉस्किटो रिपेलेंट प्लांट, मेडिसिनल प्लांट्स पूरा प्लांटेशन किया है। और इनिशियली बहुत कम बर्ड्स थी, लेकिन अभी हम लोगों ने रिसेंटली जो सर्वे किया 236 बर्ड्स है, मोर देन 15 रेप्टाइल्स, 15 वेराइटीज ऑफ रेप्टाइल्स है। यहाँ पर आपको मिलेगा फ्लैपशल, ये मैं आपको टाइप्स ऑफ टर्टल्स बता रही हूँ। तो फ्लैपशल है यहाँ पे, पॉन्ड टेरेपिन है, रेड ईयर टेरेपिन है और 1000 से ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन है। एक कॉर्नर है लेक पर जो कि एक ब्रीडिंग एरिया है, तो हम उसको बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं और ना ही मैं वहाँ पे किसी को जाने देती हूँ। तो वो जो ब्रीडिंग एरिया है उसमें हम लोग एवरी ईयर आई हैव सीन 40 to 50 टर्टल एग्स। वो मेरे लिए बड़ा नया था टर्टल एग्स, टर्टल्स को ब्रीडिंग करते हुए देखना। और उसके बाद जैसे मैंने कहा, तो ये सारे जो बायोडाइवर्सिटी है, फिश यहाँ पे 5 टाइप्स की फिश है, रोहू, कटला, बंगारू, ग्रास कार्प एंड नॉर्मल कार्प। तो इस टाइप की 5 फिश यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। बर्ड्स जैसे मैंने कहा 236 टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं। लास्ट ईयर एशियन बर्ड सेंसस भी हुआ था यहाँ पे। और WWF के साथ एवरी ईयर हम लोग ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल भी बनाते हैं। तो यहाँ पे लास्ट ईयर जो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल में WWF ने 11 वेराइटीज ऑफ ड्रैगन फ्लाइज डिटेक्ट करी। तो ड्रैगन फ्लाइज जो होती है वो भी इंडिकेटर होते हैं गुड वाटर के लिए, राइट। और ड्रैगन फ्लाई अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हो तो दे आर वेरी मच सेंसिटिव टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। तो अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, गुड है, दे विल बी एग्जिस्टिंग। और अगर आपका एनवायरनमेंट खराब है तो ड्रैगन फ्लाइज बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। प्लस ड्रैगन फ्लाइज बहुत अच्छी मॉस्किटो ईटर्स भी होती हैं, राइट। तो मॉस्किटोज को भी खाती हैं। तो जितनी ज़्यादा ड्रैगन फ्लाइज होंगी लेक पे उतना मॉस्किटो जो ब्रीडिंग है वो बहुत कम होगी। तो ये दीज आर कॉल्ड द बायो इंडिकेटर्स, राइट। तो आप जैसे आराम से अपने आप देखोगे पानी जैसे 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 ठीक होता चलेगा वैसे वैसे वो बायोडाइवर्सिटी वापस आएगी। और ये सारी चीजें भगवान ने ऑलरेडी प्लेस कर रखी हैं। ये तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा गंदगी साफ करने का काम है, तुम्हें ये खाना है, तुम्हें वो खाना है। तो इस टाइप की एक स्कैवेंजर चेन बना रखी है जो अपने आप को रिजॉल्व करती है। तो जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि बिगेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड्स हमने 2019 में डाला था। तो ये जो फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड्स होते हैं, अगेन जो कंटामिनेंट वाटर होता है उसके न्यूट्रिएंट्स को सक करते हैं, जो उसके अंदर प्लांट्स होते हैं, दे आर फ्लोटिंग ऑन द वाटर विदाउट सॉइल। तो दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी। ये अभी भी सस्टेन कर रहे हैं हम लोग, कीप ऑन विद टाइम हम इनकी मेंटेनेंस करते हैं। और जो नया एडिशन में डालने की जरूरत है वो भी हम करते हैं, क्योंकि हमारा स्विच भी रेगुलरली बेसिस पे बढ़ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर हमने यहाँ पे फ्लोटिंग एरेटर्स डाले और सोलर एरेटर्स डाले। इनका अगेन काम वाटर को ऑक्सीजनेट करना है। तो इट इज समथिंग कि वाटर में एनारोबिक रिएक्शंस ना हो, एरोबिक रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ये बिहाइंड साइंस जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो फ्लोटिंग आइलैंड या फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड्स आप बोलते हो, अगर आप अभी जाओ इस आइलैंड को टच करोगे तो इतनी सारी बर्ड्स आपके ऊपर अटैक करेंगे क्योंकि वो घर बना चुकी हैं। तो ये बहुत अच्छे बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट्स होते हैं। सिर्फ ये पानी ही नहीं क्लीन करते हैं, ये बहुत अच्छे बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट्स भी होते हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली देखने में अच्छे लगते हैं। तो ये एक मेरी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी लार्ज स्केल पे कर रही है और हम बहुत सारी लेक्स में हैदराबाद में कर चुके हैं इसको। तो ये धीरे 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 करके साइंस, यूजिंग द डिफरेंट रेमेडिएशन प्रोसीजर्स, लोगों को इन्वॉल्व करके, वॉलंटरीली, कम्युनिटी, सबको इन्वॉल्व करके, जब ये सबका रिविजन, आई ऑलवेज से कि सिर्फ लेक ट्रीटमेंट इज नॉट ओनली द वाटर ट्रीटमेंट बट पूरा कम्युनिटी ट्रीटमेंट, लेक रेजुविनेशन, फेस्टिवल रेजुविनेशन, तब जाके इवन से अच्छा भैया एक लेक रेस्टोर नेक्स्ट टाइम। तो अभी थोड़ा थोड़ा आप ये सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में बताइए, जो इनलेट्स है और आसपास जो रियल इस्टेट प्रॉब्लम्स है और जो गवर्नमेंट कॉम्प्लिकेसीज होती है, इसके बारे में आपको क्या क्या दिक्कत आई? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि भाई ये इट इज़ मोर अबाउट थॉट प्रोसेस rather than इट इज़, क्योंकि हैदराबाद में पहले फ्रेश वाटर लेक्स थी, फिर अब ये अर्बन वाटर है। हमारा मतलब मैं कट करना चाहूँगा कि हमारा माइंडसेट होता है कि हमें
कि सीवेज वाटर भी अंदर है, जैसे रिवर्स हो गई, काफ़ी लोग बोलते हैं कि गंदा पानी जाता है इसके अंदर, इसी को वहीं रोक दे। लेकिन जैसे कि आपने बताया, अगर ये पानी भी नहीं आएगा तो पूरा ही सूख जाएगा। बहुत तो अच्छा। इसके बारे में आप थोड़ा सा ये देखिए 2-3 चीज़ें मुझे बड़ा अच्छा लगा राम, ये क्वेश्चन बहुत सही है और मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि 10-12 तक की साइंस तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो देखो अगर तुम इस बात को समझो तो ये मानो कि भाई सिर्फ 1% वाटर है अर्थ पे, ठीक है। तो हमसे पहले भी लोग आए हैं, भाई अशोका सम्राट हुआ थे, अकबर थे, मुगल्स रहे, सब रहे। तो वो ही तो अर्थ पे कोई एक्स्ट्रा पानी तो नहीं, तो इसका मतलब वही 1% जो वाटर है जो कि वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उसी को ही सर्कुलेट हो के आज हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अशोका ने पानी पिया और इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन निकाला, उसको अर्थ ने रिचार्ज किया, फिर से ग्राउंड वाटर में पहुंचाया, फिर उस पानी को जो है वो अकबर ने पिया और फिर उसे अकबर ने निकाला, अर्थ में गया, रिचार्ज हुआ और फिर आज हम उसी वाटर को पी रहे, राइट। तो कहीं और से तो अर्थ वाटर नहीं लेकर आ रही। तो ये सिंपल साइंस है कि अर्थ वही जिसको आज हम गंदा पानी, स्विच पानी सब कहते हो, उसको अर्थ ट्रीट करती है और उसी को रिसाइकल करके कहती है, हमें वापस देती है। तो जब लोग ये कहते हैं कि अरे नहीं हम रिसाइकल्ड वाटर नहीं पिएंगे, अरे गाइस अर्थ भी वही पिलाती है हमें। अब अंतर यह है कि तुम सरफेस रिसाइकलिंग देख रहे हो या ग्राउंड वाटर रिसाइकलिंग देख रहे हो, तुम्हारी सोच है तुमको कैसे देखना है। लेकिन अर्थ भी हमें रिसाइकल्ड वाटर ही पिलाती है। अर्थ के लिए में कहीं और से ज़्यादा सोर्स नहीं है पानी लाने का, वो 1% वाटर ही है अर्थ के ऊपर जो रोटेट हो गए, सर्कुलेट हो के, फ्लो हो के, इधर से उधर सॉइल के थ्रू जाते, परमेबिलिटी आके और मेम्ब्रेन्स के थ्रू पास होके आपको पीने को मिलता है। तो पहले तो आप ये बात मान के चलिए कि हम स्विच वाटर ही आपको अल्टीमेटली, अगर मुझे नहीं पता कितने लोग हैं यहाँ पे जो कि मूसी रिवर जिसके ऊपर हैदराबाद वेस्ट है उसको जानते हैं। तो जब ये रिवर शुरू होती है अनंतगिरी हिल से बहुत साफ होती है, जब ये रिवर हैदराबाद में आती है तो भयंकर पोल्यूट हो जाती है और फिर अगेन जब ये टुवर्ड्स नागौर से और आगे जब ये जाती है लेक, यही रिवर, राइट। तो वो जो गंदे पानी जो हैदराबाद में उसके अंदर गंदा पानी इंक्लूड हुआ और उसके बाद अगेन जब ये 150 किलोमीटर आगे ट्रैवल करके जाती है तो फिर से लोग पानी पीते हैं उसे, राइट। तो पर्पस ये है वो इतने टाइम में बीच बीच में अपने आप को फ्रेश करती हुई जा रही है। फ्रेश कैसे कर रही है? सॉइल की वजह से, अर्थ की हेल्प की वजह से, माइक्रोब्स की वजह से। तो इसका मतलब अगर आप ऊपर ऊपर से अगर आप इसको नॉर्मली समझ सकते हैं तो स्विच वाटर भी H2O ही होता है, लेकिन उसमें कुछ कंटेमिनेंट्स आ गए। अब अगर उन कंटेमिनेंट्स को आप निकाल दो तो अगेन फ्रेश वाटर हो जाएगा। H2O तो H2O ही रहता है ना, वो थोड़ा ना चेंज हो जाता है। तो ये थोड़ा सा साइंस हमें समझने की जरूरत है, पहली चीज तो ये। अब रीजन क्या होता है, हमारा ये थॉट प्रोसेस होता है कि भाई हम फ्रेश वाटर पियेंगे। तो अगर आपको ध्यान हो, जब फिल्टर्स नहीं थे तो हम लोग ग्राउंड वाटर पिया करते थे या कुएं का पानी पिया करते थे, या और पहले जाओ तो हम तालाब का भी पानी पिया करते थे। कंप्लीट फ्रेश वाटर जैसा तो कुछ होता ही नहीं था, क्योंकि जब फिश रहती है पानी में तो उसके भी फीसेस होते हैं पानी के अंदर। फिश तो जबकि हम अच्छी मानते हैं, राइट। तो फिर फ्रेश वाटर कैसे हुआ जब फिश वहीं फीसेस कर रही है? तो वो कहाँ बाहर जाके करी? टर्टल्स थे तो टर्टल्स का भी होता है, बफेलोस का भी होता है, और हम उसी पानी को पीते हैं। तो रीजन पिया करते थे और हमारी जनरेशन अच्छी खासी चल रही थी, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी जो हम कुएं का पानी पीते हैं या हम ग्राउंड वाटर पीते हैं तो बहुत सारे इन चीज़ें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिश और वो सब चीज़ें होती हैं जो कि उस पर्टिकुलर पानी में प्रेजेंट होती हैं। और देखा जाए वो पानी ज़्यादा हेल्दी माना जाता है रेदर देन, अगर आप देखें आजकल एक वो निकली है रिसर्च निकली है कि अगर आप एक्वागार्ड्स और इन सब का पानी पी रहे हो तो ये बहुत नुकसानदायक है। तो हमें थोड़ा सा नेचर के पास वाला ही पानी पीना चाहिए, विच इज़ फ्रॉम द नेचर ओनली, रेदर देन एक्वागार्ड्स को यूज़ करते हुए। तो दैट मीन्स कि हमारी जो अंदर की जो इम्यूनिटी होता है उसको भी एक एक थ्रस्ट मिलता है जब हम सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर पानी पीते हैं। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ भी रिसाइकल करती है। अब क्या होता है कि अर्बन लेक्स और रूरल लेक्स में थोड़ा सा आप अगर अंतर समझ सकते हैं, तो रूरल लेक में क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है और तो बहुत जगह से जो फ्रेश वाटर है वो उस पर्टिकुलर लेक में आ सकता है। अगर मैं रूरल लेक की बात करूं, जैसे कि गांडीपेट की बात करूं या और थोड़ा आगे चले जाइए मंचिरीविला में या थोड़ा सा इस टाइप से, तो इन लेक्स को अगर आप देखोगे तो इनमें अभी चारों तरफ घर नहीं बने हुए हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है। तो इन इतनी सारी स्पेस है कि सब जगह से फ्रेश वाटर उस लेक में आ सकता है। लेकिन अगर आप अर्बन लेक्स की बात करिए तो आप इसी लेक को देखिए, नेकनामपुर को, या अगर आप और भी चाहे दुर्गम चेरू को देख लीजिए या आप हुसैन सागर को देख, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन हो गया, चारों तरफ, और इतने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स बन गई हैं कि फिर पानी फ्लो के आएगा कैसे? लेकिन
इनडायरेक्टली आपने सारे इनलेट्स बंद कर दिए। अब वो जो इनलेट्स बंद कर दिए हैं तो लेक में जब पानी आएगा नहीं तो लेक सूख जाएगी, और जब लेक सूख जाएगी तो फिर अगेन वो कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट के लिए रेडी है। तो उसके लिए अगर एटलीस्ट स्यूज वाटर आ रहा है तो कुछ तो आ रहा है उसमें, लेक में पानी तो है, लेक कहने के लिए तो है कि भाई हाँ दिस इज द वाटर इन द लेक। अब हमें क्या करना है कि वो जो भी पोल्यूशन आ रहा है उसको कुछ टेक्नोलॉजीज यूज करके डाइल्यूट कर देना है, क्योंकि मैं हमेशा ये बात करती हूँ डाइल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ पोल्यूशन, राइट। और मैं इसको उतना डाइल्यूट कर देना चाहती हूँ कि जितना बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर सके, लोगों को स्मेल ना आए, अच्छा लगे। मेरे को नहीं कि कोई कोई पिएगा भी नहीं तो मुझे उसको पीने के लेवल पे नहीं लेके जाना। बीओडी <3 होता है ड्रिंकिंग वाटर का, लेकिन बीओडी <10 इज वेरी गुड फॉर द बायोडाइवर्सिटी, जो कि नेकनामपुर लेक का है। तो बीओडी इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो उन सब चीज़ों के चलते हुए अगर स्विच वाटर आता है और वो स्विच वाटर अगर डोमेस्टिक वाटर है तो उसको डाइल्यूट करना या उसको उसमें से पोल्यूशन या न्यूट्रिएंट्स या कंटामिनेंट्स को निकालना काफ़ी आसान है। हाँ, अगर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन आता है तो मैं मानती हूँ कि उसको डाइवर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर डोमेस्टिक सिवेज आ रहा है तो सच में ट्रीट हो सकता है, बिकॉज वी ऑल आर मैमल्स। हमारा जितना सिवेज आता है सारा डिकम्पोजेबल है, और उसके लिए भगवान ने ऑलरेडी स्केवेंजर्स बैक्टीरिया सब बना के रखे हुए हैं, तो हम उसको बहुत हद तक डाइल्यूट कर सकते हैं और बाकी फिर अर्थ टेक केयर कर लेगी अपने आप। तो मेरा ये मानना है कि रहते दिन हम चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाएं, जितना चीज़ सिंपल रहे, राइट। और हमारी एनवायरनमेंट भी यही सिखाता है ना, बी सिंपल, राइट, हैव लॉट ऑफ सिंपलिसिटी। उतनी चीज़ें आसान से सॉल्यूशन हो सकती है। और जितना हमने पॉल्यूशन को इतना एक बड़ा इशू बना दिया है, वो अगर हम छोटे 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 इस तरीके से काम कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने घरों में नेचुरल क्लीनर्स को यूज़ करिए, बायोएंजाइम को यूज़ करिए, आप केमिकल्स मत यूज़ करिए, लाइजॉल मत यूज़ करिए, हार्पिक मत यूज़ करिए, इनके थोड़े से आप सब्स्टिट्यूट्स ढूंढिए। और वो अगर बायोएंजाइम या नेचुरल क्लीनर्स के थ्रू अगर आपका सीवेज लिक में आता है तो बहुत अच्छी बात है। या आप अपने अपार्टमेंट्स में एक एसटीपी लगा लीजिए, राइट, एक छोटा सा एसटीपी लगा लीजिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट भी हो तो भी बहुत है, और उसके थ्रू अगर पानी लेक में आता है तो वो लेक के लिए ब्लेसिंग्स है और सब लोगों के लिए भी ब्लेसिंग्स है, राइट। और यही कम्युनिटी, इसी तरीके से कम्युनिटी का एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है टुवर्ड्स द लेक। तो ये सब बातें हमें थोड़ी थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हम डायरेक्ट स्वेज भेज रहे हैं, हमने बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करने शुरू कर दिए हैं, और वो जो केमिकल्स हैं कई बार जो लेक के गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं उनको ही मार देते हैं, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। तो उन सब चीज़ों को अगर हम रिड्यूस कर सकें और नेचुरल की तरफ जा सकें तो अपने आप हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी और हम घर बैठे ही ये सब चीज़ें रिस्टोर कर लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि how are these lakes important to cities especially, and what do you see the future of this lake and what are future other lakes you're working towards? Now the damn good thing about it is, since we are not directly taking the water from, say, in the Neknampur lake, definitely. So with that point of view, since we are not drinking the water from the lake becomes less important. We are not doing the farming also. Fishing, very less. Okay. So leaving these three topics, which were very important in earlier days, before independence or just after the independence. Leaving these points, if you see other points are like that this particular lake is recharging groundwater continuously, and more than 100 private tankers are daily taking that groundwater and circulating in whole the city, even till Himayatnagar. Right, so this lake is continuously recharging the groundwater. So obviously we need the groundwater. One thing. Second thing is that if we want lung space, green space, we need the good amount of biodiversity also. So lakes are very important, because if I don't know how many people know, the water bodies give more oxygen comparatively to the trees. We need the, because we have the phytoplanktons, we have the algae which generate a good amount of the oxygen. So that is the reason, again, as I told, that water bodies are important to produce good amount of oxygen. And the third point is that if you know that now we have flash floods, right? Urban floods, flash floods. Earlier we don't have such kind of the topics. Now these terminologies have started coming in. So in those situations, again, if you want your city to protect from any kind of the flash floods or urban floods, the lake is the only way where you can divert the whole water and protect your houses, protect your roads. So this is third point. Fourth point is something is that there is a place which gives you peace
and if it is inside your city, it gives you immense peace, right? The lake is a place where the people should come and sit, and you can meditate also. Fifth point is festivals, right? We all need lakes for the festivals. Otherwise, where we'll go? I mean, very far away to go to the Gandipet or some other lake. So it's better if you go nearby to your lake and do all your festivals and enjoy the celebrations. Sixth is research and climate change. If you talk about the climate change, you want to notice how the climate change is happening, then lakes are the best way. Even the mosquitoes can tell you that how much the climate change is happening, because mosquitoes in Hyderabad are not due to only the garbage and sewage water lake, it is due to the humidity and humidity and temperature. So suppose if you remove all the sewage from the lakes in Hyderabad, if you remove all the garbage from the Hyderabad, still you have a good amount of mosquitoes in the Hyderabad, because in Hyderabad we have a pollution which gives them a very good conditions for the breeding. So again, these mosquitoes will tell you a good recharge or change in a climate change. These are the few points which are very much important. How do you want to take this movement ahead? Yeah. I see there are a lot of culture. You want to keep the community engaged through cultural events Yes. and your future projects. Yes, Ram. As I told that I want to create, I want to start a lake festival at the lake, which will be a little bit different from the other festivals. And if possible, I want to continue for many years. Let's see what will be the result. Apart from that, I want to do the research on the turtle breedings, how the sewage water is affecting, how the pollution is affecting, and the years by years, whether there is an increase or decrease or what is happening. So I hope everybody of you know the Sonam Wanchuk, right? He's working in Ladakh. He has done a very good experiments in Ladakh, and he always say that Ladakh people has nothing to do with the rice, whether rice is growing there or not. They are nothing to do with the rain, because there is no rain in Ladakh. So he wanted people should know their state hydrology, geology, and environmental conditions. So in same way, I do not want the Hyderabad people to do the research on the garbage in the space. I want them to do the research on the lakes, right? Because this is the lake city. So when everybody will be talking about the lakes, the research more happening on the lakes, the people will be thinking more about lakes, frugal technology we can bring, and all with an optimum amount. Then definitely I'll think there will be an environment for the lakes and sustainability towards the lakes. It's not only me talking, but many people talking about the same thing. Any last message you want to give? The community more, they engage more, or more, you get more supporting hands for your future. About the encroachers, they are also from the community only. Like when we talk about the garbage throwers, they are also from community only. Right? When we talk that people are urinating at the lake or doing antisocial activities, they are also for community only. So my request is that until unless the community will come up on the lakes to protect it and leaving all such kind of the issues, then only the lakes will sustain forever. Otherwise, just texting on the Twitter or Instagram or will not longer help. Maybe it will be a momentary recording, but it will not help. So you have to come, because all the festivals, everything were created so that the community itself will take care of their own day. And I will be very happy if the Hyderabad people will come out to protect their lakes on the ground. My earth, my responsibility. Thank you.